So students, we start with the fifth part. Fifth part is relatively easier. आपने जब हेक्सागन कर लिया तो ये तो आपको बहुत easy लगेगा. जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालनी है वहाँ पे एक बैटरी एज्यूम कीजिए. करंट रीचेज एट द पॉइंट A from the battery. अब on reaching here, it has two paths to go. Some goes along AB, some goes along A to D to C to B. बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाके नेगेटिव की तरफ घूमेगा. किसी और डायरेक्शन में इट इज नॉट पॉसिबल कि करंट 10 ओम के बाद 742 में रिवर्स कहीं नहीं जाएगा. इट ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल. इट ट्राइज टू टेक द शॉर्टेस्ट पाथ. जिस ब्रांच में जितना करंट जाएगा उस ब्रांच से उतना करंट वापस आएगा. दीज आर द सर्टेन थिंग्स दैट यू ऑलवेज हैव टू कीप इट इन माइंड whenever you solve the questions based on the series parallel or even the Kirchhoff's. So on reaching A, it has three paths to go. Some goes along AB, some goes along AD, some goes along AC. तो बच्चे जितना AB में करंट गया, the same current will flow in DC. क्योंकि A to D to C कोई और रास्ता नहीं है. जब एक ही रास्ता है तो these two resistances are in series. इन दोनों में करंट क्या आएगा बच्चे? सेम. जितने भी क्लोज एंड पे रेजिस्टेंसेज होते हैं they are in series. 2 and 4 6. इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया? 6. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लेबल देम एज से R1 R2 एंड आप लिखते जाएंगे कि R1 इज एंड R2 दे आर इन सीरीज. एग्जाम में आपके पास हर स्टेप लिखने का हाफ मार्क होता है बच्चे. R1 is 2 ohm, R2 is 4 ohm. So R1 and R2 are in series. It means their resultant R dash is equal to R1 plus R2, which is 2 plus 4 comes out to be 6 ohm. Now this 6 ohm जो ABC ब्रांच का आया, this is in देखिए ये A पे ये C पे, इन दोनों का भी नेट जो है वो A और C है. It is like this only कि ये 6 ohm का था और ये आपके पास 2 और 4 और ये टर्मिनल जो है ये हमारे क्या है बच्चे? A and C. You can make this as equivalent circuit. So this was R1, this was R2. इनका रिजल्टेंट 6 आ गया. This 6 and this 6. They are in parallel. ये दोनों आपके 6 और 6 जो हो गए वो क्या हो गए बेटा? पैरेलल में आ गए. दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज C. 6 and 6 पैरेलल का मतलब क्या हुआ? R डैश एंड इस 6 ओम को मैं लेबल करती हूँ R3. सो दे आर इन पैरेलल. तो 6 and 6 पैरेलल का मतलब रिजल्टेंट विल बी हाफ, दैट विल बी इक्वल टू 3 ओम. तो इस पूरे ट्राइंगल का रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ गया बच्चे? R डबल डैश विच इज इक्वल टू 3 ओम. Now this 3 ohm, this triangle A to C के बीच मेरे पास 3 ohm आ गया. So this A और C के बीच में जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास है 3 ohm. तो बच्चे इसके साथ C और B के बीच में जो पॉइंट एक रेजिस्टेंस लगी हुई है that is equal to 7 ohm. So 3 plus 7 will make it 10. It means R double dash and R4 which is 7 ohm, they are in series. So next step you can write that R double dash and R4 they are in series and the resultant is in parallel with this 10 ohm resistor. So 10 and 10 they are in parallel. So result is 5 ohm is the answer. So ये R triple dash हो गया and R triple dash आपके पास होगा बच्चे. यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं लोग. R triple dash is equal to R double dash plus R4 which is equal to 3 plus 7 which is equal to 10 ohm. So R triple dash भी आपके पास 10 ohm है और R5 भी आपके पास 10 ohm है. So this R5 and R triple dash they are in parallel and each are equal to 10 ohm. So the resultant is equal to 5 ohm. Am I clear? See देखो बच्चे, A और B के बीच में बैटरी लगाएंगे. कुछ करंट AB में जाएगा, वही करंट BC में जाएगा. 2 and 4 6, 6 और 6 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल में. 3 plus 7 10. मतलब ये ट्राइंगल जब आपने सिंप्लीफाई किया 2 plus 4 6 एक ब्रांच हो गई पैरेलल में. 6 और 6 3, 3 plus 7 10, 10 and 10 5. You can do the numerical orally as well, but when it comes for the 2 marker you have to write and simplify and mention it stepwise. And end में आपको ओम जरूर लिखना है. बीच में कहीं कहीं पे मैं skip कर जाती हूँ ओम, but you have to write it. Although I tried, I shall not skip, but in the final answer it should be definitely there. So now we come to the next question, that is the 6th part. So have you noted down? Zoom.
Screenshot, shall I rub it? So in the sixth question, we have a number of resistances connected. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 resistances are connected. So students, we come to the sixth part. In the sixth part, you can see this is a branch network. If the question comes to find the potential difference across any resistor, then it will be more convenient to solve this question using Kirchhoff's. But since we have not done the Kirchhoff's, and in this question we have been asked only the net resistance. So net resistance हम सीधे पैरेलल से भी निकाल सकते हैं. Just you have to see how the current will distribute. All resistances are 1 ohm each. I have labeled them as R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9. So that it becomes convenient for us to understand कि कौन से resistances हमारे series में हैं और कौन से parallel में. So now if you connect a battery across this, A and B के बीच में अगर आप एक बैटरी लगाते हैं बच्चे, so now the current will be given by the battery, and this current will basically go along AG. G पे जाके बच्चे, आई एम नॉट टेकिंग द वेरिएबल कि यहाँ कितना जाएगा यहाँ कितना, जस्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग इट क्वालिटेटिवली. On reaching G, it will have two paths to go. Some goes along G, some goes along GH. On reaching E, again this current has two paths to go. Some goes along EC, some goes along EF. So now after EC there is no other branch. So we start with the closed end. that जितना करंट आपका EC ब्रांच में आएगा वही करंट हमारा CD में आएगा और वही करंट हमारा DF में आएगा. यानी E to C to D to F, E to C to D to F, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है करंट के पास. So these three resistances, they are in series, only one path to go. So 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm makes it 3 ohm. So you will write R3, R4, R5 in series. So their effective resistance R dash will be equal to 3 ohm. Fine. R1 plus R3 plus R4 ये आप लिख लीजिएगा, which is equal to R1 plus R3 plus R1 नहीं है सॉरी R3, R4 and R5. 1 ohm है. So R3, R4, R5 they are in series. So resultant is 3 ohm. So instead of this whole group of 3 resistors R3, R4, R5, I can replace a single resistor of 3 ohm. जो करंट आपका इस ब्रांच में गया था वो डिवीजन कैसे हुई थी, EF हुई थी और ECD. तो अब मैंने EF तो ये ले लिया, EF इज R6 जो 1 ओम का एक रेजिस्टर है, और जो ECD था उस पूरी ब्रांच की मेरी रेजिस्टेंस कितनी आ गई बच्चे, 3 ओम आ गई. ये पॉइंट E था और E से हमारा कुछ करंट गया था EF के अलोंग और कुछ गया था ECD के अलोंग. तो ECD को ECDF प्रैक्टिकली D और F अब हमने सेम रेजिस्टर पे ले लिए क्योंकि मैंने इन तीनों की जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया ऑफ 3 ओम. नाउ दिस 3 and 1 दे आर इन पैरेलल. अगर ये पैरेलल में है बच्चे तो इनका नेट रिजल्ट क्या आएगा, दिस 3 ओम से R डैश. सो R डैश एंड R6 दे आर इन पैरेलल. तो पैरेलल में R डबल डैश मेरा क्या आ जाता है, this into this divided by this plus this. So 3 into 1 divided by 3 plus 1. Am I clear? So this comes out to be 3 by 4. Fine. So R double dash is equal to 3 into 1 by 3 plus 1, which comes out to be equal to 3 by 4 ohm. तो बच्चे ये पूरा नेटवर्क अब मेरा कितने के इक्विवेलेंट हो गया, 3 by 4 ओम. E, F, C, D, E के बाद वाले इस पूरे को हमने सॉल्व कर लिया. सो दिस 3 by 4 ओम, और अगर आप उठाएंगे दोबारा से इक्विवेलेंट सर्किट को तो दिस वाज R1 देन R2, और R1 और R2 के बाद जो ये मेरा स्क्वायर था इस पूरे को आई कैन रिप्लेस, जहाँ R6 था उसकी बजाय मेरे पास आ जाएगा R double dash which is equal to 3 by 4 ohm, and this R double dash, this R2 and this R7, if you will see they are again in series. So this is now the equivalent circuit. तो बच्चे ये मेरा G, H and ये जो पॉइंट E to C to D to F, ये जो चार रेजिस्टेंस थे R3, R4, R5 सीरीज में 1, 1, 1, 3 और 1 आपस में क्या हो गए, पैरेलल में. 3 और 1 पैरेलल में का मतलब हो गया 3 by 4. ये 3 by 4
which is R2, this one which is R7, ये तीनों आपस में क्या हो गए बच्चे, सीरीज में. तो ये मेरा E1 + 1 + 3/4, this R2, R7 और R डबल डैश, they are in series. तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 3/4 + 1 + 1 which is 3/4 + 2 which is equal to 11/4 ohm, and this is R triple dash. So R triple dash comes out to be equal to 11/4 ohm. यानी इस पूरे 3 रेजिस्टेंस का जो मेरे पास रिजल्टेंट आ गया वो आ गया 11/4 ohm, which is R triple dash. Now this 11/4 ohm and R8, ये दोनों आपस में क्या है बच्चे, जितना करंट G पे आया उसमें से कुछ GH गया, कुछ इधर गया. So this is in parallel with R8. So 11/4 and R8, they are in parallel. And the next step will be R triple dash is in parallel with R8, and R triple dash मेरे पास था 11/4 और मेरा R8 था 1. So 11/4 into 1 divided by 11/4 plus 1, which comes out to be 11/4 divided by 15/4. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 4 LCM लेंगे, तो this will be 11 + 4 15/4, 4 cancel. So this gives me the resultant of 11/15 ohm. तो ये हम 11/15 ohm कहाँ तक पहुंचे, R triple dash और R8. अब यहाँ तक मेरा पूरा हो गया 11/15. So this 11/15 and R1 and R9, यानी 11/15 R1 and R9, they will again be in series. So 11/15 and 1 + 1, that will be +2, is the R net, which comes out to be equal to 41/15, which is somewhere around 2.7 ohm. Am I clear? देखिए बच्चे, थोड़ा सा ये एंड तक आते आते आपको लगेगा कि थोड़ा बोर हो गए या थक गए, बट अगर आप ओरली देखेंगे तो इट इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट थिंग. दोबारा से सर्किट को देख लीजिए. जितना करंट ए से गया, सम गोज अलोंग GH, सम गोज अलोंग GE. जहां जहां डिवीजन हो गए यानी GH की ब्रांच बाकी पूरे के साथ पैरेलल में. देन E तक पहुंच के सम गोज अलोंग EF, सम गोज अलोंग EC, यानी EF बाकी ECG के साथ क्या है, पैरेलल में. E to C to D to F, 1 + 1 + 1 3. This 3 and this 1 पैरेलल में, 3 into 1 by 3 + 1 3/4. ये पूरा रेक्टेंगल मेरा कितना हो गया, 3/4. This 3/4, this R2 and this R7, they are again in series. But I think I'll draw the equivalent networks again and again, so that will make it easy. So this whole and this R2 and R7, they are in series. इनका resultant is in parallel with R8, and that resultant is in series with R1 and R9. So what am I going to do? If you have noted it down, इसमें थोड़ी कटिंग वटिंग हो गई है बच्चे, तो मैं आपको इसको पूरा का पूरे equivalent networks बना देती हूँ, one after the other. So I am rubbing this calculation. I hope you have understood and you have noted down. So now you have understood कि क्या series में है, क्या parallel में है. So I am not writing which all are in series, but एक के बाद एक one after the other हम इसके equivalent networks बना देते हैं, which will simplify the question to the make you understand easily. ये देखिए, सबसे पहले इन तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा इक्विवेलेंट R1 वहीं रहा, R8 वहीं रहा, R9 वहीं रहेगा. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज G, दिस इज H एंड दिस इज E. R2 वहीं रहेगा, R7 वहीं रहेगा और R6 भी वहीं रहेगा. सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किसकी हो गई, E to C to D. ये मेरे पास आ गया R डैश विच इज इक्वल टू 3 ohm. ठीक है बच्चे, यानी ये पॉइंट था मेरा E to C to D, ये GH हो गया. सो दिस इज E and F. E पे जाके EF और ECD, वे आर इन पैरेलल, जहां जहां कंडक्टर है सेम पोटेंशियल. अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो G to H वही रहेगा, R2 वही रहेगा और इन
का जो नेटवर्क है, आई एम नॉट क्रॉसिंग इट अगेन, इट विल कंफ्यूज यू। ठीक है बच्चे, सो दिस इज ए, R1 वही है, अभी R9 वही है, R8 वही है, और ये मेरे पास आ गया R2, और इस पूरे नेटवर्क का रिजल्टेंट जो आ गया वो R डबल डैश आ गया। वो कितना आ गया बच्चे, 3 into 1 divided by 3 plus 1 which makes it 3/4. अब this 3/4, this 1 ohm and this 1 ohm, they are in series. सो इन तीनों का जो हमारे पास रिजल्टेंट आया वो कितना आ जाएगा बच्चे, 3/4 + 2 11/4। तो ये मेरे पास आ गया 11/4, और ये मेरा R8 ही रहा। दिस पॉइंट वाज जो हमारा यहाँ से था E to F को हमने सिंप्लीफाई किया था, तो ये वो वाले पॉइंट आ गए थे हमारे। एंड देन इस G और H के R8 के साथ जो हमारा GEF आया था वो ये वाले पॉइंट्स आ गए टर्मिनल आपके, ये G, ये H, एंड इन दोनों को मैंने सिंप्लीफाई करके R8 रह गया, एंड देन दिस इज R1 एंड दिस इज योर R9। सो 11/4 एंड R8 इज अगेन 1 ohm, तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, इनका इक्विवेलेंट सर्किट 11/4, और आपके पास 1 जो आएंगे वो कितना आ जाएगा, 11/4 into 1 divided by 11/4 plus 1 which came out to be 11/15। तो ये R1 as it is और ये R9 as it is। सो इसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो बनेगा R1, इन दोनों का रिजल्टेंट 11/15, 15 ही आएगा ना बेटा, 11/4 plus 1, yes, 11/4 by 15/4, and this is R9 and this is A and this is B, and now this is, these three are in series, and the final resultant R net is equal to 1 plus 1 plus 11/15, which is 41/15, which is equal to 2.7 ohm. I hope now you must be clear. You should draw all these equivalent circuits. In the exam, if you don't have time to explain it clearly again, you can draw these equivalent circuits और पूरी डिटेलिंग करने के बजाय इनको सॉल्व करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चे, now how much time is left? Can we do these 4 questions? So बच्चे, we come to the 7th part. You can draw the circuit diagram, and if you are not able to draw it, we'll give you the PDF in the link given below. So look at this. This is very easy. अगर आपने 6th question कर लिया तो उसके बाद you will find all these will be very easy for you. See, you have to find the effective resistance between A and B. जिन दो points के बीच में resistance निकालनी है वहाँ एक battery assume करनी पड़ेगी ताकि current division कर पाएं. So some goes along AB, some current on reaching A goes along AB, some goes along AC, some goes along AD, and some goes along AE. अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 पार्ट्स आते हैं। क्लोज एंड से शुरू करेंगे, जितना A में जाएगा उतना ED में जाएगा। सेम करंट विल फ्लो फ्रॉम A to E to D. So 2 and 2 4, 4 and 4 in parallel, it comes out to be 2. Again this 2 and 2, they are in series. This 4 and 4 again in parallel, result will be 2. 2 and 2 in series, again result will be 4. Finally this 4 and 2 will be in parallel, which means 4 into 2 divided by 4 plus 2, which comes out to be 8/6, which comes out to be 4/3 ohm. बच्चे ओरल कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को, and you should also be able to do by now. You should be able to do it. Again listen, जितना करंट A to E गया, A E D ब्रांच क्या हो गई 4 ohm. मैं इक्विवेलेंट सर्किट्स बना देती हूँ A and D. So this 2 plus 2, current had no other way to go. A की closed end है, तो A to E to D जितना हमारे पास था करंट वो सेम ही पाथ है। तो 2 plus 2 इट मीन्स अगर इन दोनों में सेम करंट जा रहा है तो दोनों आपस में क्या होगा, सीरीज में। सो 4 ohm 4 ohm, ये 4 ohm। रेस्ट सर्किट मेरा अभी वहीं का वहीं है, आई एम नॉट टच्ड इट। दिस इज लाइक दिस। ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया आपका 4 and 4 क्या होगा बच्चे 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रिजल्ट इज हाफ। तो इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकती हूँ, अनदर रेजिस्टर ऑफ 2 ohm। तो A और D के बीच में मेरे पास क्या हो गया बच्चे, दिस इज A पॉइंट
तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम का, और बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम का। सो ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो गया बेटा, सीरीज में। रिजल्ट विल बी 4, ये 4 और ये 4। दिस 4 ओम इज ऑल्सो कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी। तो अगर आप ए और सी का सिचुएशन देखोगे तो ए और सी में एक 4 ओम लगा हुआ है, ये इन दोनों का रिजल्ट आया 2, ये 2 और ये 2 फिर से क्या हो गया 4। सो इट मीन्स ये आपके पास 2 and 2 4 एंड दिस 4 अगेन दे आर इन। इसके आगे ये वाला सर्किट मैंने नहीं टच किया बेटा, ये एज इट इज है हमारा। जहाँ जहाँ कंडक्टिंग वायर है वहाँ आपके पास सेम पोटेंशियल होगी। दिस इज बी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गई तो अब पोटेंशियल चेंज हो जाएगी। सो नाउ यू कैन सी 4 and 4 अगेन रिजल्ट इज 2 ओम। इस पूरे रेक्टेंगल की जगह आई कैन रिप्लेस ए एंड सी के बीच में मेरी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आ गई 2 ओम की, और सी और बी के बीच में भी मेरा क्या लगा हुआ है 2 ओम। दिस इज ए, और ये हमारे पास आ गया अनदर 2 ओम। फाइन। सो 2 and 2 4, दिस 4 ये सीरीज में है बेटा। सो दिस 4 and this 2 again are in parallel. So the result is 4 into 2 divided by 4 plus 2. So result is 4 into 2 divided by 4 plus 2 comes out to be 8 by 6, comes out to be 4 by 3 ohm is the R net. I hope I am clear. ठीक है बच्चे, 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 and 4 and 2 is 4 by 3. Now we come to the 8th part. Shall I rub it? Have you drawn all the equivalent circuits? Zoom हो गया, so screenshot ले सकते हैं आप। This was 7th part बेटा, not the 6th. अब 8th कर रहे हैं। So in the 8th part, there is still something that you should थोड़ा सा आपको हल्का सा समझने की जरूरत है इसमें। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जहाँ जहाँ कंडक्टिंग वायर हैं वहाँ वहाँ आपके पास पोटेंशियल जो होगी वो सेम होगी। अगेन एंड अगेन आई एम स्पीकिंग द सेम लाइन बिकॉज उसको आपको यूज करना है। सो दीज आर द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, दिस इज 6 ohm, this is 8 ohm, 2 ohm. Let us label this junction as O. This is B. तो बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक सारा पॉइंट B ही है मेरा। और this is A, तो यहाँ से लेके यहाँ तक all the points are A only. And this is 3 ohm, this is 6 ohm, this is 4. Which I am labeling them as 1 2. Suppose this is R1, this is R2, this is R3, this is R4, this is R5 and this is R6. ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं। Whenever you have to find the resistance between any two points, as I am telling you again and again that you need to connect a battery between them. Fine, आप एक बैटरी लगा लीजिए यहाँ पे। एंड करंट डिवीजन अगर आप करते हैं, एक तरीका होता है करंट डिवीजन का। पिछले क्वेश्चंस में मैंने करंट डिवीजन किया, इस क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल से ज्यादा हेल्प मिलेगी। सी R1 किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। इफ यू लुक एट R1 का एक टर्मिनल है बेटा ए पे, बिकॉज अगर ये ए है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा एक ही पॉइंट, पोटेंशियल तो सबकी सेम है। सो दिस इज ए, इट मीन्स R1 is connected between A and O, and R2 is also connected between A and O. It means R1 और R2 आपस में क्या है, पैरेलल में। You can imagine it like this. ये इस तरीके से आप इस नेटवर्क को खोलेंगे। मैंने पहले A और B के बीच में एक 3 ohm कनेक्टेड है जो R5 है, वो एज इट इज रखा। दिस टर्मिनल इज B एंड दिस टर्मिनल इज A। ये A है तो ये भी A, ये B, यानी R5 जो मेरा कनेक्टेड है वो A और B के बीच में। अब A और B के बीच में एक 2 और 8 जो 2 रेजिस्टेंस है वो A और O के बीच में कनेक्टेड है। ये A आया, यहाँ से आप एक 2 ohm का रेजिस्टेंस ले लेंगे। दिस इज योर R1। ठीक है, और इन्हीं A और O के बीच में मेरे पास
R2 भी कनेक्टेड है विच इज ऑफ 8 ओम, एंड अगर ये O है बच्चे तो ये भी O ही है, बिकॉज ये दोनों आपस में ये एक ही पॉइंट पे है. R1 इज बिटवीन A एंड O, R2 इज बिटवीन A एंड O. यहाँ तक क्लियर है. नाउ O और B के बीच में एक R3 कनेक्टेड है. सो O और B के बीच में मेरा R3 आ गया, whatever its value may be 6 ohm, एंड O और B के बीच में एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है जो कि 4 ओम की है, R4. ठीक है बच्चे. सो R1 R2 R3 R4, कैन यू सी दे आर इन पैरेलल. आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं. अगर मैं इसको और अच्छे से सर्किट बनाऊं, ये O पॉइंट था, ये भी O ही रहेगा. ये देखिए, आई होप नाउ दिस मस्ट बी क्लियर टू यू. ये सारा पॉइंट तो O ही है, ए पोटेंशियल तो सबकी सेम है. सो R1 is A and O, R2 is A and O, R3 is O and B, R4 is O and B, and this R6 is again connected between the. I hope now you won't have any problem. और देख लेंगे 2 and 8 they are in parallel, 6 and 4 they are in parallel, means R3 and R4 parallel में, R1 और R2 parallel में है. तो R1 और R2 parallel में है तो 2 और 8, R1 is parallel with R2. इनका रिजल्टेंट मैंने R डैश निकाल दिया. 2 into 8 divided by 2 plus 8. बच्चे मैं बार बार इसलिए इसको इस तरीके से करती हूँ, so that you should be able to know R1 R2 upon R1 plus R2. So this is 16 by 10. Fine. R3 R4 वो भी आपके पैरेलल में है. They are parallel with each other. So R double dash will be equal to 6 into 4 divided by 6 plus 4, which comes out to be 24 by 10. 24 by 10 plus 6. और अगर आप इसका फिर एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो दिस विल बी समथिंग लाइक R5, और यहाँ पे मेरा R डैश और यहाँ पे मेरा R डबल डैश. R dash and R double dash, they are in series with each other, and these 3 branches are in parallel with each other. ये पॉइंट A था और ये पॉइंट मेरा O हो गया. तो A और O के बीच में नेट हो गया R डैश, O और B के बीच में नेट हो गया R डबल डैश. सो दिस इज 16 by